অযোধ্যার পর কাশী মথুরাতেও মন্দির চায় সনাতনীরা। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাম মন্দির তৈরি হওয়ায় প্রত্যেক সনাতনী খুশি, কিন্তু বিরোধীরা তা নিয়ে কিছুই বলছে না। কিন্তু নানাভাবে তারা দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা করছে। যোগীর দাবি যে সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী প্রত্যেক মানুষ চাইছেন তিনটি মন্দির অর্থাৎ অযোধ্যা, মথুরা এবং কাশী তৈরি করা হোক। মসজিদ ভেঙে অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ হয়েছে, তবে এখানেই যে গেরুয়া শিবির থেমে থাকবে না তা স্পষ্ট করে দিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বুধবার উত্তরপ্রদেশের বিধানসভায় রাম মন্দিরের গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি। বলেন, প্রত্যেক সনাতনী রাম মন্দির তৈরি হওয়ায় খুশি, তবে বিরোধীরা শতাব্দীর সেরা এই ঘটনা নিয়ে কিছুই বলছেন না। তারা শুধু জনগণের নজর ঘোরানোর চেষ্টা করছেন। এখন অযোধ্যায় রাম মন্দির দেখে সকলেই মুগ্ধ। আগে এটা নির্মাণ করা উচিত ছিল। অযোধ্যা, মথুরা এবং কাশীতে তিনটি মন্দির চান সনাতনীরা। তার কথায় বিশেষভাবে উঠে আসে মথুরার নাম। তিনি বলেন, অযোধ্যার উৎসব দেখেছেন কৃষ্ণ, তিনি যেমন খুশি হয়েছেন তেমনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। রাম মন্দিরের ঘরে ফিরে এসেছে, রাম নিজের ঘরে ফিরে এসেছে, এখন কৃষ্ণও নিজের ঘরে ফিরতে চাইছেন। उत्तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बोलছেন শুনবো। उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। वो असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही है, स्वतंत्र भारत में काम पहले होना चाहिए था। 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था, और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले, और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। অযোধ্যা নিয়ে যেভাবে রাম মন্দির তৈরি হয়েছে, কাশী মথুরা নিয়েও তেমনই সাফল্য পাওয়ার ব্যাপারেই আশাবাদী উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। অযোধ্যায় কোর্টের নির্দেশে মসজিদ ভেঙে তৈরি হয়েছে রাম মন্দির, আর এবার কাশীর জ্ঞানব্যাপী মসজিদ নিয়ে সরব হিন্দুত্ববাদীরা। নজরে রয়েছে মথুরার শাহী ঈদগাহ মসজিদও। রাজনৈতিক মহলের মতে নাম না করে এই 2 মসজিদকেই নিশানা করেছেন যোগী। কাশীর জ্ঞানব্যাপী মসজিদে সার্ভের দিন নাকি শিবলিঙ্গ প্রকট হয়েছিল। বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন জ্ঞানব্যাপী মামলায় হিন্দু পক্ষের আইনজীবী হরিশঙ্কর জৈন। আজ তাক বাংলাকে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, অজুখানা নামে কোনো জায়গায় ছিল না। স্থানীয়রা অজুখানা বলেন। 16ই মে 2022 যখন অজুখানায় সার্ভে করতে টিম পৌঁছেছিল, তখন সেখানে যারা ছিলেন তারা প্রস্তুতিত ছিলেন না। তারা বলেছিলেন জল মাছ রয়েছে, বড় মুশকিলে 2 ফুট জল বের করার পরে শিবলিঙ্গ প্রকট হয়েছিল।
যে শিবলিঙ্গকে ফোয়ারা হিসেবে ব্যবহার করা হতো কি বলেছিলেন শুনুন। হরিশঙ্কর জৈনের বক্তব্য শুনবো। तो वजू खाना को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, मतलब वजू खाना का, और आप जिस दिन सर्वे हुआ था तो उसका अगर हमें बयां करें, बंगाल की जनता भी जानना चाहते हैं कि वजू खाना में जब वो शिवलिंग जैसा मतांतर में वो कहते हैं वो फुहारा, वो कुछ लोग बोल रहे हैं जो दिखे हैं, तो उनके बारे में वो नजरिया क्या था और वजू खाना को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? देखिए वजू खाना नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसका कॉमन सेंस में, कॉमन पार्लेंस में उसको लोग वजू खाना कहने लगे। बड़ा कुकृत्य हो रहा था और बड़ा ही पाप हो रहा था, इसको मैं कहता हूँ अत्याचार हो रहा था। इन्होंने क्या किया था, मैं थोड़ा आपको किस्सा बता दूँ। 16 मई को जब कमीशन वहाँ गया तो ये किसी रूप में तैयार नहीं थे कि वहाँ पर जांच हो, वहाँ का कार्रवाई हो। तो कहने लगे कि पानी है, मछलियाँ हैं और कुछ नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। बड़े मुश्किल से पानी हटाने को तैयार हुए और जब पानी हटा 2 फीट, जैसे ही पानी हटा है तो भोलेनाथ सामने दिख गए। इसमें क्या कर रहे थे, वजू कर रहे थे, हाथ धो रहे थे, मतलब कहते नहीं बनता जितना अमानुषिक कृत्य कर रहे थे। और जिसको कहते हैं कि आप भाईचारे की बात बोलते हो जानते हुए कि हमारे शिवलिंग है, आप तो जानबूझ के फाउंटेन बता रहे हो और वहाँ पर हाथ पैर धोते थे। ठीक है, उसका नाम वजू खाना पड़ गया, इसलिए वजू खाना कहते हैं। और एक तालाब नुमा चीज़ है जहाँ शिवलिंग है। और यह बात एक किताब है प्रिंसेप की, इंडिया इलस्ट्रेटेड में, इसमें लिखा हुआ, वाराणसी इलस्ट्रेटेड एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है, इसका जिक्र है इस जगह का। আর এদিকে আইনজীবী হরিশঙ্কর জৈন বলেন, বাংলার কি তালিকা রয়েছে এখনই বলতে পারবো না, যখন কাজ করব বলতে পারবো। বাংলার সকল মানুষকে জানাচ্ছে 2029-এর আগে মোদিজি কাশী এবং মথুরার মন্দিরের উদ্বোধন করবেন। কে বলেছেন তিনি শুনবো। हरिशंकर जी, आप ताजमहल बोले हैं, आप कुतुब मीनार बोले हैं, बंगाल के लिस्ट भी आपके पास है बोले हैं, और आप बंगाल के चैनल में बंगाल का कौन सा लिस्ट है आपके पास, कौन सा है? वो जब करूँगा तो मालूम पड़ेगा, अभी नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, अभी और काशी काशी और मथुरा का प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? मैं इसको डिक्लेयर कर चुका हूँ और फिर आपके चैनल पर डिक्लेयर कर दे रहा हूँ और पूरी बंगाली जनता को बतलाना चाहता हूँ, आप सबको हम निमंत्रण देंगे। 2029 के पहले माननीय मोदी जी द्वारा काशी और मथुरा दोनों का भव्य मंदिर का शिलान्यास भी होगा और प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। डेडलाइन बता दिया 2029, और मोदी जी कर कमलों से होगी। और बंगाल के लोगों को करवत निवेदन करूंगा, आप सब शिव प्रेमी हैं, आप सब कृष्ण प्रेमी हैं, बंगाल में बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, बंगाल से मेरी रिश्तेदारी है, मैं जानता हूँ वहाँ का आदमी राम प्रेमी भी है, शिव प्रेमी भी है, कृष्ण प्रेमी भी है, और बहुत अच्छी पूजा होती है। मैं जाता हूँ तो वहाँ तो इतनी बढ़िया पूजा होती है, तबीयत खुश जाती है। सबको निमंत्रण दूंगा और पूरे बंगाल वाले आओ, यूपी आओ, दर्शन करिए भगवान शिव के और भगवान कृष्ण दर्शन कीजिए। और साथ साथ बंगाल में जो काला अध्याय है गुलामी का, उसको भी समाप्त करने हम लोग आ रहे हैं और बहुत जल्दी कार्रवाई शुरू होने वाली है। थोड़ा समय की बात है, बस अध्ययन चल रहा है। সরকারের সমালোচনায় সরব হন সপা প্রধান অখিলেশ যাদব। উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ করেন তিনি। জবাবে যোগী আদিত্যনাথের কটাক্ষ, বিরোধীরা আসল বিষয় থেকে সরে যাচ্ছেন, আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই ছড়িয়েছে উত্তেজনা। On the loose stone, फिर sculpture remains in the cellars etc. It can be said that, अब ये ASI का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। It can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of existing structure. मतलब ASI ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये ASI ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। ASI का जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट, मतलब ये कहा जा सकता है दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले
एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था, ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। तो उसमें कुछ प्रमाण मिले हैं हिंदू मंदिरों के? बहुत प्रमाण मिले, तो ये एएसआई का जो कंक्लूजन है वही मानना पड़ेगा। अभी आप मेरी बात सुन लीजिए, सवाल उसके बाद एक बार आइए। लार्ज नंबर, it can be said that there existed a large Hindu temple. Large Hindu temple. আর এদিকে যোগী আদিত্যনাথ বলেন যে জানুয়ারি মাসে চারদিক থেকে একটাই আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, একটাই শান্তি ছিল, প্রভু তার আসন গ্রহণ করেছেন। কি বলেছেন শুনবো। 22 जनवरी को पूरी हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी हम देख रहे थे, हर ओर से एक ही आवाज आ रही थी। यह अद्भुत क्षण था और हमें प्रसन्नता इस बात की थी, हम अंतःकरण से प्रसन्नता इस बात की थी कि प्रभु तो विराजमान हुए हैं। उनके भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लेकिन प्रसन्नता इस बात की भी थी कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। जो कहा सो किया, जो संकल्प लिया उसकी सिद्धि भी हुई। केवल बोलते नहीं हैं, करते भी हैं। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। আমরা এখন রয়েছি হোয়াটসঅ্যাপেও, তাই ফলো করে নিতে ভুলবেন না।